ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਰਮਿਆਨ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਐਲਾਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ 1 ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਐਸਡੀਐਮ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿਨੋਦ ਯਾਦਵ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਰਾਮ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਪੰਕਜ ਮਲਕ ਸਮੇਤ तमाम ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾਓ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इस मौके सम्मान हासिल करने वाली सब हस्तियां ने गुरुद्वारा साहब वालों इस औखी घड़ी विच लंगर सेवा समेत लोड़वंदां दी मदद लई निभाई भूमिका की जम के तारीफ की, जिस नाल इह संभव हो सकिया। जदों दिल्ली महामारी का सब तो भयानक दौर वेख रही सी, उस दरम्यान किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं आई और सब सही तरीके नाल मुकम्मल हो गया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारे विच जुड़ी साध संगत जी नूं मेरा सत श्री अकाल। ये साडा एक ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਜੋ ਵਰਲਡ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਕਸ਼ਿਣ ਪੂਰਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਚਲ ਆਈ ਹੈ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਲੇਬਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੇਮੂ ਕਲਾਨੀ ਸਕੂਲ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਕਸ਼ਿਣ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਗਰੈਂਟ ਕੈਂਪ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਟਫਾਲ ਗਿਆ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛਬੀਲਾਂ ਛਕਾਈਆਂ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਚੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਔਖ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं विनोद यादव जी को बेनती कराँगा कि वो 2 मिनट वास्ते स्टेज से आन ते अपने 2 विचार भी दें, सम्मान भी दें। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना रूपी महामारी जो न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश बल्कि पूरे विश्व में एक आपदा के रूप में आई और पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। और ऐसी त्रासदी न केवल सालों में बल्कि सदियों में पहली बार आई है, जिसने पूरी मानवता को हिला के रख दिया। और जिस प्रकार से दिल्ली वासियों ने इस त्रासदी से लड़ाई लड़ी है और लगभग जीत ली है, हालांकि त्रासदी अभी चालू है, कोरोना भी पूर्णतः खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो लड़ाई हमने लड़ी है, जो साहस हमने दिखाया है, मैं तो ये कहूँगा कि इस त्रासदी में जो मुख्य लड़ाई लड़ी है वो दिल्ली वासियों ने, एक व्यक्ति ने लड़ी है। डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, पुलिस, एमसीडी, इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका जो है वो यहाँ के नागरिकों की है। कोई भी नीति, कोई भी
समस्या तब तक सॉल्व नहीं हो सकती, उसको हम पार नहीं पा सकते जब तक कि नागरिक उसमें हिस्सा ना ले। तो मैं यही कहूँगा कि गुरुद्वारा प्रबंधन ने जो हमारा यहाँ पे लाजपत नगर में सबसे बड़ा सेंटर था, जिसमें 300-350 लोग यहाँ रुके, लगातार यहाँ से उन लोगों के लिए माइग्रेंट लेबर थे, काफ़ी दिनों से फंसे हुए थे, घर से दूर थे, भावनात्मक रूप से कमज़ोर और इंसिक्योर फील कर रहे थे, उनको यहाँ से हर सुविधा, खाने पीने की, रहने के लिए और कोई कपड़े की व्यवस्था यहाँ से लगातार गई। मैं और मेरा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यहाँ पे लगातार आते थे। गुरुद्वारा प्रबंधन की तरफ से हमें हर सहयोग उस सेंटर को लेकर मिला। इस ज़िले का वह सेंटर सबसे बड़ा सेंटर था और यहाँ से हमने हज़ारों लोगों को आश्रय दिया और फिर हेमुगलानी स्कूल में हमारे गेस्टिंग सेंटर से उनको ट्रेन के द्वारा उनके घर भेजा। तो ऐसी मानवीय रास्ते में एक मानवता के संदेश को सजोए रखना और उसकी सेवा के लिए आगे आना एक बड़ी बात है। तो मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों के सहयोग के लिए। धन्यवाद। हमारे इलाके के SHO साहब जो कि कोरोना से खुद संक्रमित हो गए थे, उसके बाद उनको यहाँ से अपना उन्होंने ट्रांसफ़र भी लिया, वो क्राइम ब्रांच में गए। और जो सेवा शुरू हुई थी, वो सेवा के अंदर जो सबसे बड़ा योगदान है वो पंकज मलिक जी का है, जिन्होंने हमें, हम तो अपने घर पे सो रहे थे, इनका फ़ोन आता है कि हमारे इलाके में जो रिक्शे वाले हैं और जो कूड़ा उठाने वाले हैं, जिनको ढाबे बंद होने के कारण खाने की व्यवस्था नहीं है उनके लिए, इनका फ़ोन आया हमारे पास कि सर गुरुद्वारे से कोई हेल्प मिल सकती है। तो गुरुद्वारे का तो काम ही हेल्प करना है, गुरुद्वारे का काम ही लंगर के अंदर सबसे बड़ा योगदान जो है वो गुरुद्वारे की तरफ से सहयोग जो था, वो सबसे पहला सहयोग और शुरुआत जो थी वो सर ने कराई। मैं 2 मिनट सर को कहूँगा सर आए और अपने विचार दें। पंकज मलिक जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसा DM मैडम, SDM साहब सभी ने बताया है, इस विश्वव्यापी महामारी के दौरान जब दिल्ली में लॉकडाउन हुआ, एक तरह से लगने लगा था कि अब क्या होगा। हालांकि पल झपकते ही यहाँ के नागरिकों की बदौलत, यहाँ के प्रशासन की बदौलत, MCD, पुलिस, जिला प्रशासन और यहाँ के नागरिक, वो स्थिति इतनी अच्छी तरह से, इतनी जल्दी काबू में लाई गई और उसका बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से सबको इस तरह से काबू में कर सबको किसी को दिक्कत नहीं होने दी। इसमें गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और भाई रविंदर जी, इनका इतना सहयोग रहा कि इनके बिना ये संभव नहीं होता। जैसे ही सिचुएशन आई, जैसे ही ये स्थिति आई, संपर्क किया गया और संपर्क करने के, एक बार संपर्क करने के बाद जब तक करीब 2.5 महीने में यहाँ रहा, उसके बाद एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिसमें 3 बार इनसे बात ना हुई हो। और किसी भी टाइम जब भी बात की है, जो भी समस्या थी, जो भी आवश्यकता थी, उसको तुरंत बिना देरी के और बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा किया गया। चाहे वो रिक्शा पुलर्स हों, चाहे वो ये बेगर्स हों, चाहे माइग्रेंट लेबर हो, चाहे स्क्रीनिंग कैंप का हो, सभी को उनकी सोच से अच्छा और संपूर्ण उनकी देखभाल की गई। इसके लिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इससे मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि यदि ये सिस्टम हमारे देश में है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। यदि इस आपदा के समय भी इतने अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया गया और इतने अच्छे तरीके से सहयोग दिया गया, तो जिनकी ऐसी नीयत हो, ऐसी बढ़िया सारी सोच हो, वहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये सम्मान प्रदान किया गया, आपने यहाँ बुलाया। धन्यवाद।
भी फतेह। हम पुलिस में नौकरी करते हैं और यहाँ रोज़ाना हमने जो ड्यूटी की कोरोना के टाइम में, एसडीएम का स्टाफ और हमने तो अपनी तरफ से जितनी मेहनत की, वो तो रूटीन में हमारा काम है, वो हमें करना ही था। लेकिन जितनी मेहनत गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने की वो सराहनीय है और मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस तरह से सब समाज में काम करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ ये हमारा समाज एक अच्छे समाज के रूप में और एक उदाहरण के रूप में हमेशा रहेगा। धन्यवाद। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी की कृपा सदका, वाहिगुरू जी की मेहर सदका साਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट का डीएम साहब का, हरीम कौर जी का, विनोद यादव जी का, पंकज मलिक जी का, बलराम जी का, पूरी टीम का, पूरे लाजपत नगर पुलिस स्टेशन का, अपनी सारी कमेटी जथेदार जतिंदर सिंह सानी जी का, जिन्होंने इस दौर के अंदर सब तो ज़्यादा सहयोग साड़ा दिता, जिस दौर के अंदर असी सारी समा पाए। साढ़े अति सत्कार योग मनजीत सिंह भाटिया जी मोढे के नाल मोढा ला के जिन्होंने इस दौर के अंदर सेवा की। मेरे जोगिंदर सिंह जी लक्की वीर जी भोगल तो, जिन्होंने कोई भी चीज़ खत्म होनी उन्होंने यह नहीं कहना जी कोई अरेंज कर रहे हैं, वो कहते किन्ने पीस चाहिए ने, किन्ने डब्बे चाहिए ने, किन्ने किलो चाहिए, तो वो समान किस तरह अरेंज करके उन्होंने भेजना है वो जानते हैं। गुरु घर के अंदर किसी भी तरह की कोई घाट नहीं हुई। पंकज मलिक जी आप अपनी गड्डियाँ भर के आके लंगर के अंदर रसद पाते रहे, सारा का सहयोग रहा जी। मैं सबका अति धन्यवादी हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक छोटी सी भेंट हम भी देना चाहते हैं। बोले सो निहाल। जोगिंदर लक्की जी। मैं मैडम ਨੂੰ एक बारी कहांगा साढ़े कैशियर साहब तो साढ़े दिलजीत जी इन्होंने दोनों को गुरु घर की जी भेंट है क्योंकि तत्पर होकर इन्होंने बहुत सेवा साढ़े नाल निभाई है। प्लीज़ दो। बोले सो निहाल। बोले सो निहाल। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਆਫਤ ਮਚਾਈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਗਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।